हेलो एवरीवन। अकाउंट्स में हमने ट्रांजैक्शंस फॉर गुड्स एंड असेट्स उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैसे होती है, वो कंप्लीट किया और उसका एक इलस्ट्रेशन भी किया और वो आपने होमवर्क में भी किया। आई होप सो। अब आज हम आगे करेंगे अदर फॉर्म्स ऑफ गुड्स आउटवर्ड। कौन से अदर फॉर्म्स हैं गुड्स आउटवर्ड के? तो अपार्ट फ्रॉम द सेल्स एंड परचेज रिटर्न there are some other forms of goods outward. Other this kinds of cases outward of goods is recorded at cost price. cost price मतलब कि हम जब एक्सपेंस प्लस करके जो उसकी कोई भी चीज़ की कॉस्ट होती है, कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, तो उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं. This kinds of goods outward disclosed as a purchase reduction of business. This amount is credited to purchase account. This explanation is given as per CPT study material of ICI March 2015 page number 2.23. In accounting, treatment is to be given accordingly. Let us acquire the information about it. First है goods withdrawn for purchase personal use. जब पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ करते हैं तब हम क्या करते हैं, उसको ड्राइंग्स अकाउंट में डालते हैं, वो हमको पता है. When an owner of business has withdrawn goods for his personal use, it is essential to give accounting treatment for goods at cost price. इसको हम cost price से लेंगे. Here, owner is a benefit receiver. Thus, as per the rule of debit the receiver, business owner's account, मतलब कि drawings account will be debited. Here, goods goes out from business. Business में से goods जा रहे हैं तो परचेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ कॉस्ट प्राइस. उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट. बिजनेसमैन डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस. दस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बिकम असेंशियल. एडवर्टाइजमेंट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. Thus, as per the rule, debit expenses, advertisement expenses account will be debited. Goods goes out from the business. Thus, purchase account is credited with cost price. Purchase account है वो cost price से credit होगा. उसके बाद है goods given as donation. Donation में हम जब goods दे देते हैं तब businessmen give goods as donation from business to religious organization and charitable trust. As per the rule, debit the expenses, donation account will be debited. लेकिन ये जो डेबिट होगा वो कोस्ट प्राइस से डेबिट होगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पता है, लेकिन कोस्ट प्राइस से उसको डेबिट करना है. मतलब कि कभी कभी एक्सपेंस दिया गया है तो हमको एक्सपेंस प्लस करके उसका जो टोटल प्राइस है, उसकी टोटल वैल्यू है वो लिखनी है. उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. एक्सीडेंटली फायर टेक्स प्लेस इन अ शॉप और गोडाउन ऑफ बिजनेसमैन एंड गुड्स गेट बर्न बाय फायर. कभी कभी क्या होता है कि गोडाउन में आग लग जाती है, गुड्स जो है वो जल जाते हैं. दिस इज ट्रीटेड एज लॉस ऑफ बिजनेस. दस एज पर द रूल ऑफ डेबिट loss on goods destroyed by fire account will be debited and goes out of business. The purchase account is credited with the cost price of goods. इसमें सभी में यही बात की है कि जब क्रेडिट होता है तब cost price से होता है. If goods of business is not issued, the owner has to bear the entire loss which is taken place due to fire. If goods are destroyed, it's fully insured. This loss will be borne by insurance company. जब इंश्योरेंस लिया होता है तब इंश्योरेंस कंपनी लॉस बेयर करती है, और जब इंश्योरेंस नहीं लिया गया होता तब जो ओनर है वो लॉस बेयर करता है. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी would become debtor for amount of admitted claim. In this case, insurance company account will be debited and purchase account will be credited. Insurance company admits claims in proportion of insurance policy. If goods is partially insured, the remaining amount of loss will be treated as loss of business and
debited to loss on goods destroyed by fire and goods destroyed by fire account will be credited with cost price. Likewise goods destroyed by accident, goods destroyed by rain, ये सारी चीज़ें हैं, तब cost price से हमको goods debit करना है. Goods lost due to skinning of a streamer etc. are treated as goods destroyed will be credited to purchase account. जब goods जाते हैं तब purchase account credit होता है. उसके बाद है goods received as free sample. जब free sample से गुड्स रिसीव होते हैं, गुड्स बिजनेस में आते हैं, फ्री सैंपल मिलता है, तब गुड्स बिजनेस में से जा रहे हैं तब हम परचेस अकाउंट क्रेडिट करते हैं. तो गुड्स जब बिजनेस में आएंगे तब हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट कर, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और डेबिट होगा. क्या होगा कि फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और होलसेलर gives goods to retailer is free sample. Generally the retailer has to distribute these goods to customers for free. In this case there is no monetary exchange for goods. कभी कभी क्या होता है कि फ्री सैंपल में जब गुड्स देते हैं तब मॉनिटरी एक्सचेंज नहीं होता, मनी एक्सचेंज नहीं होता है. Thus it is non-economic transaction. It will not recorded in basis of accounts. When goods received as free sample and are sold by the retailer. लेकिन क्या होता है कि जब गुड्स रिसीव होते हैं और जब रिटेलर है वो सेल करता है, ही वुड रिसीव कैश. इन दिस केस कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. जब फ्री सैंपल से गुड्स मिलते हैं तब हमको क्या कोई उसका नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाता है, तब उसकी कोई एंट्री नहीं होती. लेकिन क्या होता है, जब वो गुड्स हम सेल करते हैं तब उसकी एंट्री हो जाती है. अब नेक्स्ट है थेफ्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस. व्हेन गुड्स आर स्टोलन फ्रॉम शॉप और गो डाउन ऑफ बिजनेसमैन it is loss to the business to the extent of cost price of goods. As per the rule of debit the loss on goods stolen account will be debited. As a rule credit goes out and purchase account will be credited. Accounting treatments for goods related accounts emerging from exchange of goods are as follows. Serial number, the nature of transactions, account will be debited and account will be credited. तो क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा. तो when goods purchased on credit, क्रेडिट पे जब गुड्स परचेज करते हैं तब होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट. फिर when goods sold on credit, जब गुड्स सेल करते हैं तब कस्टमर के या डेटर अकाउंट डेबिट होता है और सेल अकाउंट क्रेडिट होता है. व्हेन सेल्स रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल हुआ, उसको वो सेल रिटर्न आया है, वो गुड्स रिटर्न आए, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट टू डेटर अकाउंट. उसके बाद व्हेन परचेज रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हुआ और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हुआ. When ओनर ऑफ बिजनेस विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए जब विड्रॉ करते हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. When गुड्स गिवन एज अ डोनेशन, डोनेशन से जब गुड्स दिया है तब डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट. उसके बाद when गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट. उसके बाद है when गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट. उसके बाद है व्हेन गुड्स स्टोलन, जब गुड्स चोरी हो जाते हैं तब लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट. उसके बाद है व्हेन गुड्स रिसीव्ड एज फ्री सैंपल सोल्ड, तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है एंड सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होता है. Now we will write general entries of outward goods in forms of illustration. मतलब कि illustration के में हम देखेंगे कि ये सारे goods की जब entry होती है वो कैसी होती है. General entry for above mentioned item number 5 and 9 shown in bracket is also popular, but in present time this almost amount is credited to purchase account. जो भी है वो जो goods जा रहे हैं business में से तो वो purchase account credit होता है. ठीक है, तो आज हमने अदर फॉर्म्स ऑफ गुड्स आउटवर्ड के जो फॉर्म्स थे, 6 फॉर्म्स थे वो हमने देखे, उसके जर्नल एंट्रीज भी देखी. सो आपको होम असाइनमेंट में लिखना नहीं है, लेकिन ये सब
आपको याद रखना है, पढ़ना है और समझना है। ठीक है, थैंक यू।